Hello, dear students. I hope you all are well. Yes, today we will read and understand chapter 3rd, that is parts of a computer. So let's start. Here we have some little kids like you. Let's see कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं. Hey Jenny, I have different body parts that help me do different things. Do computer also have different parts? Hey Jenny, मेरे पास different body parts हैं जो मुझे अलग अलग काम करने में हेल्प करते हैं. क्या कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं? Yes, Jim. Just like our body, computer also have different parts. Yes, Jim. जैसे हमारी बॉडी है ऐसे ही कंप्यूटर के भी different parts होते हैं. Wow, Jenny. Tell me more about the different parts of a computer. Sure, Jim. Yes, dear students, आप देख रहे हैं कि little students के बीच में, kids के बीच में कितनी क्यूरियोसिटी है हमारे जैसे कि बॉडी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के भी पार्ट्स जानने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. जानते हैं हम भी और बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ. आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स सच एज हेड, हैंड्स, फेस एंड लेग्स. Similarly, a computer also have different parts. Keyboard, mouse, CPU and monitor are the main parts of the computer. Yes, dear students, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होती हैं अलग अलग, जैसे कि सिर, हाथ, मुंह और पैर, इसी तरह से कंप्यूटर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर. ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मॉनिटर. Okay, and this is keyboard and this one is mouse. Yes, dear students, this is mouse. It's not like your home rat. It's a non-living thing. It's a machine. Okay, and this is a CPU. It is called brain of the computer. So these are basic parts of computer. अब इनके बारे में हम जानेंगे कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज कीबोर्ड. दिस इज अ मोबाइल. कलर द पार्ट you use to enter in the mobile, enter number in the mobile. Yes, dear students, आप जो ये कीबोर्ड देख रहे हैं मोबाइल में, it help us to type the text in the mobile. आप कोई भी मोबाइल में मैसेज टाइप करते हो या नंबर डायल करते हो, आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है ना. इन द सेम वे, just like the mobile phone, computer have a keyboard to write letters and numbers. Yes, dear students, जैसे मोबाइल में आप कुछ भी आपको टाइप करने के लिए कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से कंप्यूटर में भी टाइप करने के लिए आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है. A keyboard is a rectangular in the shape. Yes, dear students, rectangular क्या होता है? जिसकी आमने और सामने की फ्रंट जो साइड होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है. आप देख रहे हो ये वाली लेंथ और इसकी इक्वल है, और ये वाली लेंथ इसकी इक्वल है. सो अ कीबोर्ड इज रेक्टेंगुलर इन शेप. The button on the keyboard are called keys. Yes, dear students, you can see there are some keys on the keyboard. Okay, so जो ये buttons हैं छोटे छोटे जिन पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, these are called keys. There are different types of keys on the keyboard. Writing by pressing these keys is called typing. Yes, जो कीबोर्ड पे बेटा डिफरेंट कीज़ होते हैं. ओके, और इनको प्रेस करते हुए जब हम लिखते हैं, ओके,
तो उसे हम टाइपिंग बोलते हैं. Space bar is the longest key on the keyboard. Yes, dear students, you can see that this is space bar keys. This is space bar keys, and this is the longest key on the keyboard. The different type of keys on the keyboard. Yes, जैसे हमने बताया कि कीबोर्ड पे तो डिफरेंट कीज़ होती हैं. अब आपको जो अलग अलग काम करना होगा उनके लिए कीज़ भी अलग अलग होंगी, राइट? सो number keys used to type the numbers. Yes, जो 0 to 9 numbers हैं उनको टाइप करने के लिए आप नंबर कीज़ यूज़ करते हैं. And alphabet keys having letters A to Z used to type text. Yes, dear students, जो आप टाइप करते हो, like आपको अपना नाम लिखना है, for that thing you use letters. तो उसके लिए आपको जो A to Z कीज़ दी होती हैं वो यूज़ करते हैं आप, and these keys are called alphabet keys. और जिन पे आपकी ABCD लिखी होती है उनको क्या बोलते हैं? Alphabet keys. Very good. And the next is spacebar keys. Used to give space between the typed text. जैसे बेटा आपको नाम से ही पता लग रहा है स्पेस, तो जो तो टेक्स्ट के बीच में आपको स्पेस देना होगा, फॉर दैट थिंग यू यूज स्पेस बार की. ओके. एरो की. नेक्स्ट इज एरो कीज that moves up, down, left and right. Yes, dear students, आप देख रहे हैं ये जो एरो बने हुए हैं like this and this and this, ये क्या है? ये आपके पेज को अप डाउन मूव करने के लिए जो है आप यूज़ करते हैं. ओके. नॉट ओनली पेज, जब आप पूरा टेक्स्ट आप जब लिख रहे होते हो उसमें पेज पे ऊपर नीचे जाने के लिए आप जो है उस एरो को यूज़ करते हैं. एंड यू कैन सी नंबर कीज़, जो ये टॉप रो है ये आपकी नंबर कीज़ होती हैं. एंड हेयर यू कैन सी अल्फ़ाबेट कीज़, एंड दिस वन द लॉन्गेस्ट की इज स्पेस बार की. ओके. And next one is mouse. Yes, dear students, you can see the picture of mouse here. A mouse is used to point at objects or select them on the monitor. Yes, dear students, किसी भी चीज़ को point करने के लिए, उसको select करने के लिए आप जो है mouse का यूज़ करते हैं. You can perform the following tasks using mouse. You can select any object on the monitor. आप मॉनिटर स्क्रीन पे लाइक जो भी आप शो हो रहा है उसको किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं. ओपन एनी ऑब्जेक्ट, ड्रॉ पिक्चर्स, प्ले गेम्स, आप ये सब काम जो है माउस की हेल्प से कर सकते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व एरो ऑन द मॉनिटर? यस, टेल मी. यस, जब आप माउस को मूव करते हैं उसके साथ साथ आपने देखा होगा मॉनिटर पे एक एरो भी साथ साथ मूव कर रहा होता है, राइट? दिस एरो कैन बी मूव्ड अराउंड द मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ अ माउस. इट इज नोन एज माउस पॉइंटर और माउस कर्सर. यस डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे आप माउस को मूव करेंगे आपका स्क्रीन पे जो एरो जो आप देखते हैं वो भी साथ साथ मूव करता है, और यही जो एरो है उसको माउस पॉइंटर या माउस कर्सर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? माउस पॉइंटर और माउस कर्सर. यस डियर स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट पार्ट इज CPU. विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू थिंक? राइट द नेम ऑफ द बॉक्स. यस डियर स्टूडेंट, आपका कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिससे आप सोचते हैं? Tell me. Yes, mind. Dear student, आपका जो माइंड है उसकी हेल्प से ही आप सोच पाते हैं. Simple facts are there. The parts of a computer such as the monitor, keyboard and mouse are attached to the CPU box with the help of wires. Yes, dear students.
जैसे हमारी पूरी बॉडी तो लाइक बोन्स और वेन्स के थ्रू एक दूसरे से हमारे सारे पार्ट्स कनेक्ट होते हैं, इन द सेम वे जो कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं वो वायर के थ्रू एक दूसरे सीपीयू से और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. अ कंप्यूटर हैज़ अ पार्ट कॉल्ड सीपीयू. द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. The CPU is called the brain of the computer. Yes, dear students. तो कंप्यूटर का जो बॉडी पार्ट है एक CPU, उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और इसे क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, माइंड ऑफ कंप्यूटर यू कैन से. यस, द CPU हेल्प्स a computer to process orders gives us by us. Yes, dear students, CPU हेल्प करता है कंप्यूटर को उस तरह से प्रोसेस करने में जिस तरह से हम उसे कमांड देते हैं. इट ऑल्सो कंट्रोल्स अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. और ये जो बाकी जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के उन्हें भी कंट्रोल करता है कि किस तरह से काम करना है. इट वर्क्स लाइक अ ब्रेन. Yes, dear students, it works like a brain. ये एक दिमाग की तरह काम करता है. That is why it's also called brain of the computer. इसी वजह से इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. It is placed inside a box called the CPU box or the cabinet. Yes, ये CPU जो है आपका एक जो प्लेस बॉक्स होता है, कैबिनेट होता है, उसके अंदर प्लेस्ड होता है. Okay, CPU box has an on or off button in the front of. Yes, आप देख सकते हैं this is the front side of a CPU and this is power button. आप जो है इस पर क्लिक करके इसको प्रेस करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं. And this is back side of the CPU box. In olden days, computers had CPU box placed below the monitor. Yes, dear students, पहले जो आपके जो है कंप्यूटर्स होते थे उनके साथ जो है नीचे ही आपका जो है CPU अटैच्ड होता था. You can see in this picture also. Yes, dear students, now our next part of computer is monitor. Where do you see pictures on the word and that scene that you type on a computer that color that part. Yes, dear students, ये आप कहाँ देखते हो? जो भी आप काम करते हो, टाइप करते हो, पिक्चर्स ड्रॉ करते हो, आपको कहाँ नज़र आएगा? Yes, the part of computer where the letters and number you type appear is the monitor. यस डियर स्टूडेंट्स, आप जो भी काम करोगे आपको जो है मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देगा. दिस इज़ द स्क्रीन ऑफ अ मॉनिटर एंड you can also watch movies on the monitor, and it is a screen that looks like a television. yes dear students, ये मॉनिटर की स्क्रीन जो है बिल्कुल जो है टेलीविज़न की तरह दिखती है. And you need to press the on or off power button, you can say, on the monitor to switch it on. Yes dear students, जो आप देखते हो मॉनिटर का भी एक पावर बटन होता है जिसे आप प्रेस करके उसे ऑन कर सकते हैं. Yes dear students, so this was the chapter and I hope आप सबको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड if you really like our video, please do like, share and subscribe our channel. Have a nice day. Bye bye.